everyone, this is Sheetal Vyas and I welcome you all on my channel Learning with Sheetal Vyas. Friends, today we are going to continue with chapter number 2, Components of Food. In our previous lecture, we have read about food, that what is the scientific definition of the food. Food means all the nutritious substances which plants and animals take in order to get energy to survive and to maintain their life. Then we learn about the meal. Meal is the food served and eaten at regular occasions for taking food during the day, like breakfast, lunch and dinner. So we can say that meals means the serving of the food at once. एक बार में जो फूड सर्व किया जाता है उसे हम मील कहते हैं. Then what are nutrients? We have learned that different type of food provide us different kind of nutrients and we need all the nutrients to live a healthy life. There are 7 most important nutrients which are carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals, water and fibers or roughage. Then we saw this nutrients chart. In that we have tried to find out the work or the function of different nutrients in our body. Today we will try to find out something more about the functions of these nutrients. After that chart, we learn about the sources of food items or edibles, that we get all the food items from plants and animals. So these are 2 sources to get the food. Or we can say that we get all the 7 nutrients from the plants and animals. After that, we have decided to perform some physical and chemical test. So friends, today we are going to perform, or we can say that we are going to learn about some chemical and physical test to identify or to confirm the presence of nutrients in different food items. It is easy to perform tests for carbohydrates, fats and proteins as compared to the tests for mineral and vitamins or vitamins, because minerals and vitamins are very complicated and the tests are also a little bit difficult for us to perform in our general laboratory. So today we are going to start with the test of carbohydrate or starch. At first, let me tell you about the starch. Plants save their food in the form of starch. Starch is a type of carbohydrate. This is a complicated carbohydrate. प्लांट्स जो होते हैं वो अपना जो फूड होते हैं वो स्टोर करते हैं स्टार्च की फॉर्म में. सो स्टार्च भी एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है. नाउ लेट अस परफॉर्म द टेस्ट. द फर्स्ट थिंग विच वी शुड नो about a practical or about a chemical reaction, that is objective. Means what is the motive of the test? So the objective is to confirm the presence of starch in the given food material. What we have to confirm? That कि क्या जो food item हमें दिया गया है उसमें starch की presence है या नहीं. Second thing, to find out the principle. जब हम कोई भी टेस्ट करते हैं, चाहे वो फिजिकल हो या चाहे वो केमिकल हो, उसके पीछे कोई ना कोई रूल वर्क करता है. सो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ दैट टेस्ट. इस टेस्ट को करने के लिए हम जिस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं वो क्या है? व्हेन स्टार्च रिएक्ट्स विथ आयोडीन सॉल्यूशन, इट्स पिंक ऑरेंज कलर कन्वर्ट्स इनटू ब्लू ब्लैक कलर.
जब भी हम स्टार्च और आयोडीन की रिएक्शन कराते हैं तो आयोडीन सॉल्यूशन का जो पिंक ऑरेंज कलर होता है वो स्टार्च के साथ रिएक्ट करके ब्लू ब्लैक कलर देता है. सो दैट इज द प्रिंसिपल और रूल बिहाइंड दिस टेस्ट. नाउ मटेरियल विच वी नीड: डाइल्यूटेड आयोडीन सॉल्यूशन. डाइल्यूटेड आयोडीन सॉल्यूशन का मतलब होता है आयोडीन सॉल्यूशन में थोड़ा सा डिस्टिल वाटर मिला दिया जाता है जिसको कहते हैं डाइल्यूटेड आयोडीन सॉल्यूशन. अ ड्रॉपर एंड फूड मटेरियल लाइक पोटैटो. तो यहाँ पर हमने पोटैटो को एक फूड मटेरियल की तरह यूज़ किया है और हमें कंफर्म करना है कि इस फूड मटेरियल में स्टार्च की प्रेजेंस है या नहीं. नाउ व्हाट इज द प्रोसीजर टू डू द टेस्ट? टेक अ पोटैटो and cut it into some pieces. If you want, you can peel it off, that will better. So take a potato, peel it off and cut it into some pieces. Then drop some drops of dilute iodine solution on the piece of potato. फिर हम क्या करेंगे, ड्रॉपर की हेल्प से इस पोटैटो पे डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स डालेंगे और कुछ सेकंड के लिए हम उसे ऑब्जर्व करेंगे. सो व्हाट इज आवर ऑब्जर्वेशन? द पिंक ऑरेंज कलर ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन टर्न्स इनटू ब्लू ब्लैक कलर. क्या ऑब्जर्वेशन की हमने कि जो आयोडीन सॉल्यूशन का जो पिंक ऑरेंज कलर था अब वो ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गया है. और हमारे जो प्रिंसिपल हमने पढ़ा था या जो रूल हमने पढ़ा था वो यही था कि जब स्टार्च आयोडीन सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है तो पिंक ऑरेंज कलर ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है. सो आवर ऑब्जर्वेशन इज जस्ट सेम एज द रूल. सो व्हाट वी कैन से, द रिजल्ट इज स्टार्च इज प्रेजेंट इन द गिवन फूड मटेरियल. तो हमने क्या देखा कि पोटैटो में स्टार्च प्रेजेंट होता है, ये हमने इस टेस्ट से कंफर्म किया. Now let us see this through a picture. Here you can see that when iodine solution and we can see the dropper and potatoes. जब हमने ड्रॉपर की हेल्प से आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स पोटैटो पे डाली, you can see that the original color of iodine solution is orange pink, that is in the dropper. और जब हम इनको पोटैटो के स्लाइस पर डालते हैं तो कुछ सेकंड में ये कन्वर्ट होकर ब्लू ब्लैक कलर में बदल जाता है. सो दैट इज द कंफर्मेशन ऑफ स्टार्च टेस्ट और कार्बोहाइड्रेट टेस्ट. नाउ द नेक्स्ट वन विच वी आर गोइंग टू परफॉर्म इज द टेस्ट फॉर प्रोटीन. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द गिवन फूड मटेरियल्स. प्रिंसिपल और रूल: when protein reacts with the solution of copper sulfate और CuSO4, कॉपर सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला कहते हैं इसे, जो है CuSO4, एंड कॉस्टिक सोडा जिसका कि NaOH, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है. इट गिव्स वायलेट कलर. तो इसका क्या रूल है कि जब भी प्रोटीन के साथ कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा की रिएक्शन होती है या सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं इसे, जब इसकी रिएक्शन होती है NaOH की, तब हमें वायलेट या पर्पल कलर जैसा एक सोल्यूशन मिलता है. विच मटेरियल वी रिक्वायर? वी नीड सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 और कॉपर सल्फेट एंड NaOH. देन फूड मटेरियल्स लाइक मिल्क और पेस्ट ऑफ पल्सेस. पल्सेस मीन्स दालें. देन a dropper and test tubes. What is the procedure? Take some milk and paste of pulses in separate test tubes. हमें क्या करना है? 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है. एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा मिल्क लेना है और दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमें पल्सेस का पेस्ट लेना है, जिन्हें हम सोक करके पेस्ट बना सकते हैं, जिन्हें पानी में भिगोकर जब वो सॉफ्ट हो जाए तब हम उनको पेस्ट बना सकते हैं. देन ऐड सम वाटर इन द पेस्ट ऑफ पल्सेस टू मेक अ सॉल्यूशन. क्योंकि पल्सेस का पेस्ट जो है वो थोड़ा थिक होगा, गाढ़ा होगा, तो उसमें रिएक्शन इतनी अच्छे से नहीं हो पाएगी, इसलिए हम उसमें पानी मिलाकर उसको एक पेस्ट को एक सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर लेंगे. देन ऐड 2 drops of CuSO4. 2 to 3 drops we can use, but generally we use 2 drops of CuSO4 and
10 drops of NaOH solution in both the test tubes. अब हमने दोनों टेस्ट ट्यूब में, यानी कि एक में जिसमें मिल्क था और दूसरी जिसमें पल्सेस का सोल्यूशन था, पहले 2 drops CuSO4 एंड देन 10 drops NaOH को ऐड किया और उन दोनों को मिक्स किया. दोनों टेस्ट ट्यूब को नहीं, टेस्ट ट्यूब के अंदर ये जो मटेरियल है उसको सेपरेटली मिक्स किया और दोनों ही टेस्ट ट्यूब को हमने कुछ सेकंड के लिए रख दिया. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू सी, द ऑब्जर्वेशन. द कलर टर्न्स इनटू वॉयलेट और पर्पल. दोनों ही टेस्ट ट्यूब का जो कलर है अब वो वॉयलेट और या फिर पर्पल कलर में कन्वर्ट हो गया. सो व्हाट इज द रिजल्ट, दैट प्रोटीन is present in the given food material. Now we have confirmed, क्योंकि हमने प्रिंसिपल या रूल में पढ़ा था कि जब भी कभी प्रोटीन के साथ कॉपर सल्फेट और NaOH की रिएक्शन होती है तो पर्पल या वॉयलेट कलर हमको मिलता है. और क्योंकि हमारे ऑब्जर्वेशन भी हमें यही बताती है, दैट्स वाई इट इज़ कन्फर्म कि जो गिवन मटीरियल है, गिवन फूड मटीरियल है, उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है. लेट अस सी थ्रू अ पिक्चर. Here in the step 1, इस टेस्ट ट्यूब में आप देख सकते हैं that milk is given and then dilute copper sulfate solution is added into this. Then sodium hydroxide solution or NaOH is added in this. And finally we got a purple color in the food sample which confirm the presence of protein. Now the next test which we are going to perform is a physical test. What we are going to do? We are going to test for fats. What is the objective? To confirm the presence of fats in the food, in the given food material. What is the rule or principle behind it? Fats leave an oily, translucent patch on blotting paper when crushed on it. जब भी कभी फैट्स को किसी भी पेपर पर, ब्लॉटिंग पेपर या बटर पेपर पर जब क्रश किया जाता है तब एक ऑयली ट्रांसलूसेंट पैच रह जाता है, बन जाता है. यही इसका प्रिंसिपल है. आई विल जस्ट मेक इट क्लियर व्हाट इज ट्रांसलूसेंट जस्ट आफ्टर दिस टेस्ट. मटीरियल रिक्वायर्ड: ब्लॉटिंग पेपर, फूड मटीरियल्स लाइक पीनट्स और वॉलनट वी कैन टेक. हमने पढ़ा है कि ड्राई फ्रूट्स में भी ऑयल या फैट्स की प्रेजेंस होती है, या फिर हम पीनट्स भी यूज कर सकते हैं. देन व्हाट इज द प्रोसीजर? Wrap the given food material in a blotting paper and crush it carefully. The paper should not be torn up. Leave it for 2 to 3 minutes. हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो फूड मटेरियल हमें दिया गया है, चाहे पीनट हो या वॉलनट हो, उसको हम प्रॉपरली ब्लॉटिंग पेपर में रैप कर लेंगे और किसी भी बेलन की सहायता से या किसी भी ऐसे मॉर्टर की सहायता से हम उसको क्रश कर लेंगे. बेलन की सहायता से क्रश करने से ये बहुत ही इजीली क्रश हो जाएगा. बट व्हाट वी शुड रिमेंबर दैट ये पेपर फटना नहीं चाहिए. हम चाहें तो अगर हमने वॉलनट्स लिए हैं तो कई बार हम फिंगर्स में और हमारे थंब और फिंगर में उसको प्रेस करके भी इजीली हम इसको क्रश कर सकते हैं. लेकिन पीनट्स थोड़ी हार्ड होती हैं, इसलिए हमें किसी मटेरियल को, इस पीनट को क्रश करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी किसी डिवाइस की. जब हमने इसे क्रश किया, बिना पेपर को फाड़े, पेपर को फटने नहीं देना है और उसको 2 या 3 मिनट के लिए छोड़ दिया. देन व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन? अ ट्रांसलूसेंट पैच ऑन ब्लॉटिंग पेपर इज क्लियरली विजिबल. हमें ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर एक ऑयली पैच नज़र आता है. और यही हमारा रूल था कि अगर किसी भी फूड मटेरियल में ऑयल या फैट प्रेजेंट है तो वह क्रश करने पर ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर ऑयली पैच छोड़ देता है. सो वी कैन से दैट फैट इज प्रेजेंट इन द गिवन फूड मटेरियल्स. नाउ लेट अस सी हाउ द ब्लॉटिंग पेपर विल लुक. यू कैन सी दैट ऑन दिस ब्लॉटिंग पेपर translucent stains are visible. Now, as I told you, I will try to clear it that what is translucent. Actually, this is the type of visibility. There are 3 types of visibility: transparent, translucent and opaque. What is the transparent objects? When we can see everything at the other side of the object clearly through an object,
This object is called transparent object and this visibility is called transparency. Example is piece of clear glass. जब भी कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू यानी कि जिसके दूसरी तरफ के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें हम क्लियरली देख पाते हैं, तब हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज़ के आर या पार देख सकते हैं। जैसे कि कांच, क्लियर जो ग्लासेस होते हैं उन्हें उनके आर पार हम देख सकते हैं। कांच की ग्लास आप समझ सकते हैं जिनमें हम आर या पार देख सकते हैं। देन द सेकेंड विजिबिलिटी इज ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनके आर या पार पूरी तरह से नहीं देखा जा सकता, यानी दिखाई तो देता है बट इमेज क्लियर नहीं होती। व्हेन थिंग्स एट द अदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट आर विजिबल but not visible clearly through the object, or we can say these are blur. It is called translucent object. For example, the butter paper with oily patch or the blotting paper with oily patch. तो ट्रांसलूसेंट जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके आर पार हम क्लियरली नहीं देख पाते। जो इमेज हमें दिखाई देती है वो ब्लर इमेज होती है। नाउ द थर्ड वन इज ओपेक. When things at the other side of the object are not visible at all through the object, then it is called opaque object. For example, metal sheet. जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के आर या पार कुछ भी नहीं देख पाते, वो एक बैरियर की तरह या हम कह सकते हैं एक अवरोध की तरह हमारी आंखों के सामने आ जाए, एक पर्दे की तरह जिसके दूसरी तरफ हमें दिखाई न दे, तब हम कहते हैं कि यह जो ऑब्जेक्ट है वो ओपेक ऑब्जेक्ट है। और इस तरह का एग्जाम्पल है मेटल की कोई भी शीट। सो दिस वॉज द इंफॉर्मेशन अबाउट द विजिबिलिटी. नाउ what we should find out? The question which arise in my mind: what do different nutrients do for our body? What is the question? That ये जो different nutrients होते हैं ये हमारी body में करते क्या हैं? Although we have already learned that different nutrients play different role in our body. We need these nutrients to fulfill our different requirements. But let us now learn this thing in detail. The first nutrient is carbohydrate. These are energy giving foods. These are present in two forms. Carbohydrates जो हैं वो energy giving foods हैं और ये दो तरीके से हमें available होते हैं. The first is soluble and simple carbohydrate like sugar, which provide us instant energy. शुगर से हमें क्या मिलती है? इंस्टेंट एनर्जी मिलती है. एग्जाम्पल है शुगर क्रिस्टल्स एंड ग्रेप्स. देन द सेकेंड टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज इनसॉल्युबल एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लाइक स्टार्च विच इज अ स्टोर्ड फूड. शुगर से हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, इसे हम स्टोर नहीं कर रहे हैं. जब भी हमें इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है तब हमारी बॉडी सबसे पहले शुगर पे रिएक्शन करती है. लेकिन जब हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है तो रिमेनिंग जो फूड होता है जैसे कि प्लांट में स्टार्च की तरह स्टोर रहता है. हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट का स्टोर्ड फूड जो होता है वो स्टार्च की फॉर्म में होता है. तो यह एक इनसॉल्युबल और कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है. कहाँ हम लोग को सोर्स जो है कार्बोहाइड्रेट का, स्टार्च का, वो है स्टार्च इटसेल्फ एंड राइस एंड पोटैटो. राइस और पोटैटो these are rich source of starch or carbohydrate. Second nutrient is protein. These are body building foods. प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं क्योंकि इससे हमारी बॉडी ग्रो करती है. हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं मोस्टली वो प्रोटीन उसमें होता है, प्रोटीन से बनते हैं. ऑल्सो नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी. और इसीलिए प्रोटीन को क्या कहा जाता है? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी कहा जाता है. दीज फूड्स हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द बॉडी. ये जो फूड मटेरियल्स हैं, जो प्रोटीन फूड मटेरियल्स हैं, वो हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को ग्रो कराने में. उसकी जो ग्रोथ होती है
उसमें ये हेल्प करते हैं। देयर स्ट्रक्चर इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, पल्सेस, एग्स, फिश एक्सेट्रा। क्या एग्जाम्पल है? मिल्क, पल्सेस, एग्स एंड फिश, ये सभी प्रोटीन रिच फूड मटेरियल्स होते हैं। नाउ द नेक्स्ट न्यूट्रिएंट, बिफोर दैट लेट अस सी सम एग्जाम्पल्स. You can see that these are the examples of carbohydrate. This is the picture of sugar, then grapes, potatoes and rice. Now next, let's see examples of protein. These are different type of pulses and beans. Pulses and beans are rich source of protein. Then fish, milk and some dry fruits are also a good source of protein. Now let us learn about other nutrients. Fats. These are very high energy giving foods. They produce more energy than the same amount of carbohydrate can produce. Fats जो होते हैं वो भी energy giving food होते हैं, but they are highly rich in the energy. और सेम अमाउंट का कार्बोहाइड्रेट और सेम अमाउंट का फैट अगर हम देखें तो उसमें फैट से हमको ज़्यादा एनर्जी मिलती है. एग्जाम्पल्स घी, बटर, ऑयल, चीज़ एक्सेट्रा. नाउ द नेक्स्ट न्यूट्रिएंट इज विटामिन. दीज आर प्रोटेक्टिव फूड. दीज न्यूट्रिएंट्स हेल्प अस टू फाइट अगेंस्ट वेरियस डिजीजेस. विटामिन्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं. किसके अगेंस्ट? वेरियस डिजीजेस के अगेंस्ट. तो जब भी कभी हमें बीमारी होती है तो उस बीमारी से लड़ने की जो ताकत है वो हमें विटामिन से मिलती है. देयर इज़ अ ह्यूज वैरायटी ऑफ विटामिन्स. विटामिन्स बहुत ज़्यादा वैरायटी में अवेलेबल हैं, लाइक विटामिन ए, सी, डी, ई, के एंड विटामिन बी. That is actually group of many vitamins and also called vitamin B complex. और इन सभी में vitamin A, D, E and K, these are fat soluble, while vitamin B and C are water soluble. मतलब कि B और C ये जो दोनों vitamins हैं ये water में soluble हैं, पानी में घुल जाते हैं, but the other like A, D, E and K ये फैट सॉल्यूबल है, ये पानी में नहीं बल्कि किसी फैट वाले सॉल्यूशन में डिसॉल्व होते हैं. एग्जाम्पल्स आर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. यस फ्रेंड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन्स. देन मिनरल्स. These are also protective foods. Minerals are also protective food. These nutrients help in maintaining various body functions properly. Minerals जो होते हैं वो भी protective food है, but उनका main function होता है वो किस तरह से protect करते हैं हमें, वो हमारी body के जो different body parts हैं उनके functions को properly maintain करते हैं. We need these nutrients in very small amount. मिनरल्स की जो ज़रूरत होती है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होती है, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ मैनी ऑर्गन सिस्टम्स लाइक नर्वस सिस्टम. ये जो मिनरल्स होते हैं इनकी ज़रूरत हमें बहुत स्मॉल अमाउंट में होती है, लेकिन फिर भी इनका जो फंक्शन होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. ये हमारे बहुत सारे बॉडी ऑर्गन को जो फंक्शन होता है उस फंक्शन को बहुत ही प्रॉपरली करने में हमारी हेल्प करते हैं, जैसे कि नर्वस सिस्टम को. और उसके अलावा बोन्स, टीथ नीड मिनरल्स फॉर हेल्दी ग्रोथ. बोन्स और टीथ की हेल्दी ग्रोथ के लिए भी हमको मिनरल्स की ज़रूरत होती है. दीज आर ऑल्सो एसेंशियल फॉर हेल्दी ब्लड. एग्जाम्पल्स आर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आर रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स. नाउ लेट अस सी सम एग्जाम्पल थ्रू सम पिक्चर्स. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फैट्स. यू कैन सी ऑयल, घी, fish, butter, cheese and dry fruits. Then here these are examples of vitamins and minerals. You know that fruits, vegetables, these are good source of vitamins and minerals. Especially leafy vegetables are good source of minerals. So these are example of vitamins and minerals.
Now, the next important factor or important nutrient of our food is water and roughage. Let At first, let us just learn about water. Water is the universal solvent and it is essential for the body. यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब होता है जो ऑलमोस्ट ऑल सॉल्यूट्स को डिसॉल्व कर सके. पानी में मैक्सिमम सॉल्यूट्स जो होते हैं वो घुल जाते हैं. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट. एंड यू नो दैट इट इज एसेंशियल फॉर द बॉडी. ये हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं. इट इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन वेरियस केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस इन द बॉडी. हमारी बॉडी में जो डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती हैं उन सभी में वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज होता है. एंड यू नो दैट solvent is necessary or we can say essential to perform any chemical reaction. It regulates the temperature of the body. कभी पसीने के थ्रू तो कभी यूरिनेशन के थ्रू हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब हमारी बॉडी में टेम्परेचर बढ़ जाता है तब हमें पसीना आने लगता है. दैट इज द सिस्टम टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर एंड इट जस्ट हैपन ड्यू टू द वाटर. ये तभी हो सकता है जब हमारी बॉडी में वाटर हो. इट हेल्प्स इन द एक्सक्रीशन ऑफ द टॉक्सिक मटीरियल्स फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. पानी और किस में हेल्प करता है? यूरिन की फॉर्म में हमारी बॉडी के जितने भी टॉक्सिक मटीरियल्स होते हैं, टॉक्सिक का मतलब होता है पॉइजनस, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल मटेरियल होते हैं. हम जितना भी खाना खाते हैं जिसमें प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स या और अदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सभी जब डाइजेस्ट हो जाते हैं तो उनमें से कुछ टॉक्सिक मटेरियल्स भी बनते हैं. उनको हमारी बॉडी से बाहर निकालने के लिए एज इन द फॉर्म ऑफ यूरिन वाटर इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल. वी गेट वाटर फ्रॉम वेरियस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. अलग अलग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में अलग अलग वाटर कंटेंट्स होते हैं, बट दीज आर वेरी हेल्पफुल टू कंप्लीट अ पार्ट ऑफ रिक्वायरमेंट. वी यूज वाटर फॉर कुकिंग. हम पानी को खाना बनाने के लिए, पकाने के लिए भी यूज करते हैं. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वी ड्रिंक वाटर डायरेक्टली. तो हमारे बॉडी की जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है उसे पूरा करने के लिए हम फूड और वेजिटेबल्स खाते हैं, कुकिंग में वाटर इस्तेमाल करते हैं और इसी के साथ हम डायरेक्ट पानी भी पीते हैं. यू नो दैट वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट 7 to 8 glasses of water per day. Now the next nutrient is roughage, although it is not nutrient, but it is really very important. Let us learn about this. These are also called dietary fiber. इन्हें क्या कहा जाता है? डाइटरी फाइबर्स कहा जाता है. These are present in various food items. ये बहुत अलग अलग तरह के फूड आइटम्स में, बहुत सारे फूड आइटम्स में प्रेजेंट होते हैं. These do not provide any nutrition but gives a bulk to the food. ये कोई न्यूट्रिशन हमें नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमारे फूड को एक बल्क बनाते हैं, यानी कि फूड के मटेरियल को थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं. पेट भरने के लिए जो बल्क हमें चाहिए वो ये रफेज या डाइटरी फाइबर्स हमें प्रोवाइड करते हैं. These fibers help in regular movement of the bowels and prevent constipation. और इनका क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के जो मूवमेंट होते हैं उनको रेगुलेट करते हैं और हमारे जो डाइजेशन के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है जिसे हम बोल्स बोलते हैं या जिसको हम मॉर्निंग में स्टूल पास करना बोलते हैं, उसको प्रॉपर मूवमेंट के लिए उसका हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉपर मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है. उसी के लिए ये रफेज या डाइटरी फाइबर्स हेल्पफुल होते हैं. अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो आपने देखा होगा कि जब आप 1 गिलास ऑरेंज जूस पीते हैं या 2 ऑरेंज खाते हैं तो 2 ऑरेंज खाने से आपका पेट ज़्यादा भरता है, जबकि 1 गिलास ऑरेंज जूस पीने से आपका पेट ज़्यादा नहीं भरता. उसका रीज़न है कि फ्रूट्स में ये डाइटरी फाइबर्स बहुत ही प्लेंटी ऑफ अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं. इस वजह से हमारा पेट फ्रूट्स खाने से जल्दी भरता है, जबकि जूस पीने से इतना जल्दी पेट नहीं भरता है. सो दीज फाइबर्स कीप द फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपरली. इनका क्या मेन काम है? हमारे स्टमक को क्लीन रखना, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शन को प्रॉपर रखना.
Rough phase is present in many food items like vegetables, whole grains, pulses, etc. होल ग्रेन से मतलब होता है ऐसा अनाज जिसे पीसा न गया हो, यानी पीसने से अनाज का फाइबर जो होता है वो टुकड़ों में टूट जाता है, लेकिन जो होल ग्रेन होता है जिसे हम साबुत अनाज कहते हैं या हम कह सकते हैं कि जिसको पीसा न गया हो, वो अनाज या वो दालें जो होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में फाइबर प्रेजेंट होता है. Here are some examples of roughage. You can see that fruits, vegetables, whole grain, oats, beans, dry fruits, etc. These are a rich source. These are rich source of fibers. And water, you know that we should drink clean water. And plenty of water we should drink every day. Now let us learn about a very important term, that is balanced diet. Now the question arises that do we eat every nutrient every day? क्या हम सभी न्यूट्रिएंट्स रोज खाते हैं? Do we get every necessary nutrient in sufficient amount? क्या हमारे जो रोज का जो खाना है उसमें हमें सभी न्यूट्रिएंट्स सफिशिएंट अमाउंट में मिलते हैं? और अगर मिलते हैं देन व्हाट डू वी कॉल सच फूड? तो ऐसा खाना जिससे हमको सभी न्यूट्रिएंट सफिशिएंट अमाउंट में मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सो लेट अस लर्न अबाउट बैलेंस्ड डाइट. A diet which contains all the nutrients in correct amount along with proper amount of roughage or dietary fibers and water is called balanced food. क्या होता है बैलेंस फूड? एक ऐसी डाइट जिसमें न सिर्फ सभी न्यूट्रिएंट्स करेक्ट अमाउंट में हो बल्कि उसी के साथ प्रॉपर अमाउंट में डाइटरी फाइबर्स और वाटर भी प्रेजेंट हो, उसे हम बैलेंस फूड कहते हैं. बैलेंस मीन्स नॉट मोर नॉट लेस, न बहुत ज़्यादा न बहुत कम. बट डज एवरीवन नीड सेम टाइप ऑफ बैलेंस फूड? क्या सभी को एक ही जैसा बैलेंस फूड चाहिए? क्या अगर मुझे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन चाहिए तो क्या किसी छोटे बच्चे को भी उसी अमाउंट में प्रोटीन चाहिए? क्या मुझे कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो क्या किसी एजेड पर्सन को भी उतनी ही रिक्वायरमेंट है? Do all the people need all the food items in same amount? What are the factors which affect the requirement of food of any person? Next question क्या है मेरे दिमाग में कि क्या कोई ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ अलग फैक्टर्स हैं जो अलग अलग इंसान की फूड रिक्वायरमेंट्स को अलग अलग तरीके से अफेक्ट करते हैं? Does a balanced diet so expensive that a common man cannot afford it? क्या बैलेंस डाइट इतनी एक्सपेंसिव है कि एक कॉमन मैन उसको अफोर्ड नहीं कर सकता? इन सभी क्वेश्चन के आंसर्स अब हमें फाइंड आउट करने हैं. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल ट्राई टू फाइंड आउट ऑल दीज आंसर्स. टिल देन आई विल जस्ट रिक्वेस्ट यू टू रीड द पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. Just try to watch both the videos properly and learn the new terms and good examples of different type of foods. And try to learn about the test which we have performed today. That is test for the starch or carbohydrate, test for the protein and test for the fats. In the next lecture, we will try to find out the answers of our questions. Till then, have a nice day. Jai Hind everyone.